Hi everyone, welcome back to my channel, and if you are new here, welcome to the channel. So today's video is about postpartum hair fall. I think every new mother faces this. Like 99% of the women who become a mom, they face this postpartum hair fall, and it's such a tragic phase. It just, if nobody wants this phase to ever come in their life, especially women. So in today's video, I'm going to be talking about what worked for me and what did not. I am almost 2 years postpartum, and everything that I'm going to be talking about is going to be backed by science, so no myths allowed here. So let's get started. So first thing first, why does this happen? So postpartum hair fall happens with everyone basically, and it's just a phase because when you are pregnant, your estrogen level is very high, and because of that your hair are in the growth phase. तो वो growth phase में होने की वजह से हमें almost six month pregnancy के बाद 5 to 6 months के around ही हमें हमारे बाल, skin, everything looks very shiny, very glowing and everything. बाल हमारे एकदम thick हो जाते हैं because shredding नहीं हो रही होती है बालों की, बहुत hair and there shredding हो रही होती है. जैसे ही बेबी होता है वैसे ही एस्ट्रोजन लेवल डाउन हो जाता है, और वो होते ही हमारे बाल शेडिंग फेज में चले जाते हैं, और ये शेडिंग फेज कुछ 2 से 6 महीने तक रहता है. समटाइम्स इट लास्ट फॉर 8 months also. So first thing first, don't panic. It is just a temporary phase. It goes away. And all the new moms watching this video, I see you. I have been there. Your hair will grow back normally and even better. But इस फेज में कुछ चीज़ें करके हम इस ग्रोथ को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, और जो बालों की रीग्रोथ है उसको थोड़ा सा स्टिमुलेट कर सकते हैं और थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वर्कड फॉर मी. आई डिड नॉट डू एनी फैंसी स्टफ बिकॉज आई एम अ मॉम ऑफ 2 एंड आई एम अ फुल टाइम वर्किंग मदर. तो मेरे पास में बहुत ज़्यादा फैंसी रूटीन करने का टाइम नहीं था. द ओनली थिंग दैट आई केप्ट वॉज कंसिस्टेंट सिंपल हेयर केयर. द नंबर 1 थिंग दैट आई डिड वॉज कीपिंग माई स्कैल्प क्लीन. आई डिड नॉट यूज एनी harsh chemical shampoo. Throughout my pregnancy and postpartum, I have relied on this brand which is sulfate free, paraben free, and it does not have any fragrance. This is not a sponsored or a paid video. I have genuinely been using this particular brand from last 3 years, and this brand has such an amazing hair care range. They don't have sulfate, they don't have paraben or anything that can harm your scalp. It is not at all harsh. I did not do any kind of heat styling in my postpartum wherein I was in the shredding phase. I did not use a lot of blow dryer as well. I anyways occasionally use it whenever I wash my hair at night or I'm in a rush. Otherwise I let them air dry. So that is one thing that I kept in mind. Most important thing was for me that I focused on the nutrition, because ये मैंने काफ़ी पहले चीज़ समझ ली थी. I think 4 years ago when I started creating videos, I have learned this one thing, that just one product for your skin or for your hair or for your body is not enough. You have to do the whole regime. You have to incorporate everything. So the second point that I kept in mind was the proper nutrition. Proper nutrition is basically, I kept in mind that I am taking sufficient amount of protein. हाँ, माँ बनने के बाद में ये सब चीज़ें आप इतना अनलेस आपके घर में 3-4 हाउस हेल्प हो, आप सब चीज़ें ऑन टॉप ऑफ योर हेड नहीं कर सकते हो. बट स्टिल आई ट्राइड कि मैं एटलीस्ट जितना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन है उसका हाफ तो मैं एवरीडे लूँ, चाहे मैं जैसे लूँ. एंड आई एम अ सेमी वेजिटेरियन, सो आई एम काइंड ऑफ एन एगिटेरियन पर्सन. सो आई ट्राई टू incorporate eggs, a lot of dal every day, and I try to take some amount of whey protein which is highly digestible, not the commercial ones that are available on the market. I did my research and found one which is really easy on the gut, so I started taking that because I have been breastfeeding as well. I am still breastfeeding, so I had to keep that in mind, that these things are in place. And along with the proper food, I kept my vitamins like omega. I have been taking vitamin D, iron, so I continued with them even after postpartum. And along with that, with my doctor's consultation, I have added vitamin C, biotin twice a week, and I have started vitamin B12. All of these supplements that I have been taking in my pregnancy and postpartum, even today, is from the brand Nutrilite. This is a well-known brand, and it was recommended to me from my mom's friend. Like the whole family takes this brand supplements. They're the best in the market without any second thought. This was there because deficiencies worsen the hair fall 100%. The third thing that I have taken care of was the scalp care. So mostly I used to apply hair oil on the strands only, because बहुत जगह सुना था, and even Instagram did a lot of help. Instagram and YouTube did a lot of help to corrupt my brain that your strands need moisturization. तो वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाती हूँ सिर पे, because I don't know,
इट जस्ट डजंट गो विद माई रूटीन। सो मैं बहुत ज़्यादा तो ऑयलिंग नहीं करती हूँ, बट पोस्टपार्टम जब ये शेडिंग फेज चल रहा था तो मेरी मॉम ने बोला कि बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, गर्म तेल की चम्पी करना स्टार्ट करो एंड यू विल सी अ डिफरेंस। तो ठीक है, मम्मी की बात माननी पड़ती है, और मम्मी की बात मान के आई हैव स्टार्टेड डूइंग अ चम्पी 2 आवर्स बिफोर माई हेड वॉश। और बिकॉज मैं मोस्टली घर पर रहती हूँ, आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, तो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आने जाने के कारण वो जो डस्ट डिपॉजिट और वो बहुत ज़्यादा सीबम प्रोडक्शन ये सब नहीं होता था। तो ऐसा नहीं है कि मैं गंदी स्कैल्प पे ऑयल लगा रही थी, माई स्कैल्प वॉज फेयरली क्लीन। तो उस पे मैं जब भी हेयर वॉश, मेरा हेयर वॉश डे होता था, सो आई डू हेयर वॉश 3 टाइम्स अ वीक। तो हेयर वॉश से 2 आवर्स पहले, 2 to 3 आवर्स पहले मैं गरम थोड़े से लुकवार्म तेल की मम्मी से चम्पी करा लेती थी या फिर मैं खुद कर लेती थी, एंड देन आई यूज़ टू वॉश माई हेयर एंड डू द कंडीशनिंग एंड एवरीथिंग। तो उससे जो स्कैल्प का नरिशमेंट था ना, दैट वाज लाइक रियली समथिंग दैट आई कुड सी द डिफरेंस कि हाँ नहीं ये होता है। और वो जो हेयर वॉश के बाद में काफ़ी ज़्यादा एकदम ड्राई हेयर हो जाते थे, वो नहीं होते थे। सो दैट वाज समथिंग रियली हेल्प। सो द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई टुक केयर ऑफ इज़ द स्ट्रेस। ठीक है, ये बहुत ही अनरियलिस्टिक लगेगा बोलने के लिए कि आप स्ट्रेस मत लो, यू आर इनटू पोस्टपार्टम, यू आर गोइंग थ्रू अबंडेंस ऑफ थिंग्स, you have to take care of a small baby, you have to take care of yourself, your mental health, your physical health, your family, your work, this that blah blah blah। बट इन सब के बावजूद अगर आप अपनी नींद थोड़ी सी पूरी कर पा रहे हैं, इफ़ यू कैन गेट सम सपोर्ट टू टेक केयर ऑफ द बेबी फॉर अ वाइल एंड वाइल यू कैन स्लीप, सी फॉर मदर्स इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग। तो मुझे नहीं लगता कि ये आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट विद मी, क्योंकि आप जब बच्चा सो रहा होता है ना, सिर्फ तभी आप सुकून की नींद सो पाते हो। अगर आपका बच्चा जगा हुआ है ना और आपको कोई बोले कि चलो आई विल टेक केयर ऑफ द बेबी, यू स्लीप समहाउ, यू कांट स्लीप पीसफुली, आपको नींद नहीं आती है, आपका कॉन्स्टेंटली ध्यान उधर ही रहता है, कहीं वो रो तो नहीं रहा है, कहीं उसको फीड तो नहीं चाहिए, कहीं उसको कुछ चाहिए तो नहीं। मैंने भी काफ़ी मंथ्स के बाद में इस चीज़ को समझा, ऑलमोस्ट 10 मंथ्स लगे इस चीज़ को समझने में। मम्मी के काफ़ी ज़्यादा बार बोलने के बाद, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, काफ़ी सारे आर्टिकल्स बुक्स पढ़ने के बाद में मुझे ये चीज़ समझ में आई कि वो जो मेरे क्रूशियल कुछ आवर्स होते हैं ना, जब बेबी रात में सो जाता है और उसके बाद में जब मैं स्क्रोलिंग कर रही होती हूँ या फिर मैं सोशल मीडिया में मेरा टाइम स्पेंड कर रही होती हूँ, वो टाइम अगर मैं मेरा सोने में इन्वेस्ट करूँगी ना, तो इट वुड बी अ लॉट बेटर फॉर माई हेयर। सो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दैट, आई एम नॉट सेइंग कि मैंने तुरंत ही जैसे ही हेयर फॉल स्टार्ट हुआ मैंने एकदम ही बिल्कुल बेस्ट रूटीन बना लिया था। नो, दैट डिड नॉट हैपन विद मी एज वेल, आई एम जस्ट लाइक यू। उसके बाद में जैसे ही मैंने ये चीज़ इनकॉर्पोरेट की कि वंस माई बेबी इज़ अस्लीप, मैं सब कुछ छोड़ के सो जाती थी। जैसे ही मतलब एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स की स्लीप आपको लेना ज़रूरी है, बिकॉज योर बॉडी इज़ डीलिंग विद अ लॉट। तो उस टाइम पे आपका स्ट्रेस हार्मोन लेवल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, विच इज़ कॉल्ड कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल आपका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप अपनी नींद भी नहीं लेते हैं, सो योर कॉर्टिसोल इंक्रीजेज अ लॉट, विच इज़ बेसिकली कंट्रीब्यूटर टू योर हेयर फॉल। इसके लिए कुछ लोगों को 12 मंथ्स के बाद में भी हेयर फॉल होता है। कीप अ ट्रैक ऑफ योर स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। फ़ोन जितना कम आप रात में यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपकी नींद पूरी होगी और उतना ही ज़्यादा आपका स्ट्रेस लेवल कम रहेगा। और आप वैसे तो रात में बार बार उठना पड़ता है, बट येस, जब मॉर्निंग में आप फाइनली उठेंगे तो यू विल फील मोर रिफ्रेश्ड। So let's move on to things that did not work for me. So onion juices, they did not work for me because उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा scalp irritation हो गई थी, उसकी वजह से it was not a good idea for me. Second thing is कि बहुत ज़्यादा बाल धोने से या हर वक्त तेल लगाए रहने से आपका हेयर ग्रोथ ज़्यादा होता है, या बाल आप तेल लगा के कस की चोटी बांध लेंगे तो उससे आपका हेयर ग्रोथ ज़्यादा होगा. So that is something that personally did not work for me. I'm not sure if that works for anyone who is watching that video. Let me know in the comments if that works for me. I'll try because I'm still having a little bit of hair fall here and there, so I will definitely try that. And third thing is basically is not a product but understanding that just one product will not magically change anything or everything. So जब भी ये सब जो फेस चल रहा था, तो whenever I used to go on Instagram, I used to go on Nykaa or any other platform, जब भी कुछ भी एंटी हेयर फॉल प्रोडक्ट डालो तो यू सी अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट. आई एम नॉट सेइंग दैट दे डोंट वर्क फॉर एनीवन. हो सकता है किसी के लिए काम करते हो इंडिविजुअली, बट जब तक आप ये पूरा होल रूटीन नहीं रखते हैं, आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते हैं, तब तक कोई भी एक चीज़ से यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि इससे मेरा हेयर फॉल ठीक हो जाएगा या बाल रीग्रो हो जाएंगे. इवन इन योर नॉर्मल लाइफ, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द पोस्टपार्टम. आई थिंक दैट डज नॉट वर्क लाइक दैट. सो कोई भी सिरम या शैम्पू अपने आप से काम नहीं करता अनलेस
हमें पता नहीं हो कि स्पेशली जब रूट कॉज बॉडी के अंदर हो, कोई भी डेफिशिएंसीज़ हो या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो या फिर जैसे ये पोस्टपार्टम सिचुएशन है, तो कोई भी सीरम, शैम्पूज़, कंडीशनर ये इंडिविजुअली आप काम नहीं करते हैं। तो सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए आपके स्कैल्प पर रहते हैं और शैम्पूज़ का जो प्राइमरी काम होता है दैट इज़ टू क्लींस योर स्कैल्प, नॉट टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन और स्कैल्प। तो जो उसमें जो भी हार्श केमिकल्स होते हैं या फिर पैराबेन्स होते हैं, सिलिकॉन होता है, ये सब अगर आपके स्कैल्प पे 2 to 3 मिनट्स एवरी ऑल्टरनेट डे रह रहा है तो इट स्टार्ट्स बिल्डिंग अप। इसकी वजह से इन सब को इनकॉर्पोरेट करके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। बट दैट डज़ नॉट मीन कि उसमें जो अनियन बल्ब ऑयल है या फिर जो उसमें जितने भी हर्बल इंग्रेडिएंट्स जो कुछ 1 या 0.1% में डाले जाते हैं, इट्स जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक। तो हेयर फॉल कंट्रोल के बहुत सारे शैम्पूज़, बहुत सारे सिरम्स और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, बट शैम्पू स्पेसिफिकली शैम्पू एंड कंडीशनर हेयर फॉल कंट्रोल वाले काम नहीं करते हैं। बिकॉज आई हैव ट्राइड मैनी ऑफ देम, लाइक मैं सारे ब्रांड्स के नाम आपको बता सकती हूँ, मैंने सारे ऑलमोस्ट ट्राई किए हैं। दे डू नॉट वर्क लाइक दैट बिकॉज वो 2 से 3 मिनट आपके स्कैल्प पे रहते हैं अनलेस दे हैव सम serious ingredients like peptides and they have caffeine and niacinamide, otherwise they will not work because 2-3 मिनट के लिए yes। अब आप बोलोगे कि so I had this question कि अगर 2-3 मिनट के लिए अच्छे इंग्रेडिएंट्स काम नहीं कर रहे हैं तो फिर सल्फेट फ्री दिस दैट ये सब हटा के हम महंगे शैम्पूज, बिकॉज अगर आप जो जेनेरिक ब्रांड्स हैं जैसे डव है, क्लिनिक प्लस वगैरह, अगर आप ये लेते हो तो आपको आराम से 300-400 रुपए की 600 ml की बॉटल आ जाती है। बट एट द सेम टाइम अगर आप ये सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री एंड ऑल ऑर्गेनिक ये ब्रांड्स की तरफ अगर आप जाते हो तो आप 600-700 रुपीज़ में 200 ml की बॉटल आती है। सो इट्स ऑलमोस्ट द डबल ऑफ द कॉस्ट। तो मुझे ये दिमाग में आया कि अगर अवॉइड ही करना है, अगर 2-3 मिनट में किसी चीज़ का असर हो ही नहीं रहा है तो क्या। देन आई डिड माई रिसर्च एंड आई टुक अ हेल्प फ्रॉम ChatGPT। तो उसमें मुझे ये पता चला कि 2-2, 3-3 मिनट के लिए भी जो हम ऑल्टरनेट डेज पे शैम्पू और कंडीशनर अप्लाई कर रहे हैं उससे जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं लाइक सिलिकॉन एंड ऑल, दे स्टार्ट बिल्डिंग अप। वो बिल्डअप हो के देन दे शो देयर असली चेहरा, तो आपका हेयर फॉल मेजरली स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए ये प्रोडक्ट्स अवॉइड करने। बट एट द सेम टाइम अगर आप ये पेप्टाइड्स वाले अगर आप सिरम्स यूज़ करते हैं, जैसे कई सारे सिरम्स आई हैव ट्राइड, सो यू कैन सी दीज ऑल सिरम्स आई हैव ऑलरेडी ट्राइड एंड दे ऑल आर फ्रॉम ऑल द मेजर ब्रांड्स। अलॉन्ग विद दैट आई हैव ट्राइड दिस LED light therapy as well. I would not say that this is some kind of magic, but yes, they seem to be working on me. पिछले 6 महीने से मैं काफ़ी डिफरेंस ऑब्जर्व कर रही हूँ और मेरे बाल ऑलमोस्ट 6 महीने पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा मेरे बालों के साथ में एक मिसहैप हो गया था, एक एक्सीडेंट हो गया था मेरे बालों के साथ में। आई गॉट माई एंटायर हेयर बॉन्ड विद हैवी अमाउंट ऑफ ब्लीच। तो वो एक अलग स्टोरी है, उसके बारे में मैंने एक रील बनाई हुई है सेपरेटली और मैं इंस्टाग्राम यू कैन चेक। एंड सिंस देन उस एक्सीडेंट के बाद से आई हैव स्टार्टेड टेकिंग दिस वेरी सीरियसली, कौन सा प्रोडक्ट मेरे स्कैल्प और स्ट्रैंड्स पर अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज वहाँ से देयर वॉज नो कमिंग बैक। आई कैन लाइक यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड टेल मी लाइक इट वॉज कम्प्लीटली बर्न्ड। सो आई हैव कम फ्रॉम देयर to this. I have not yet found my original hair. They are still growing, but जितनी मेरी लेंथ थी वो मेरी ऑलमोस्ट सारी 90% बर्न हो गई थी। उसको मैंने कैसे कैसे फिक्स किया, इफ़ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट आई कैन मेक दैट, बिकॉज इसमें इंक्लूड करूँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। बिकॉज फॉर 2-3 months आई डिड लाइक माई कंप्लीट अटेंशन वॉज टू माई हेयर, बिकॉज मैं पूरे चॉप ऑफ नहीं करवाना चाहती थी और उसको मुझे फिक्स करना था। सो आई डिड फिक्स दैट। तो उसके लिए लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। दैट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ good products and a lot of good hair care. And talking about the serums, as I was mentioning, I have used all the major brands, those are available in Indian market. Serums भी सिर्फ तभी काम करते हैं जब आप इनको consistently यूज़ करें। ऐसा नहीं कि एक दिन यूज़ कर लिया या जिस दिन शैम्पू किया उस दिन यूज़ कर लिया, जिस तरह से बताया गया उस तरह से यूज़ करना है। अगर आप उस तरह से नहीं यूज़ करोगे then there is a problem. So this was one thing that I did, that I relied on hair care products and did everything consistently. तो उसकी वजह से वो मुझे help किया. So the bottom line is basically no topical solution will work on its own. It has to be done from the inside and outside both, and the changes in the lifestyle, based on that it will basically help you grow your hair, because it worked for me when I changed my lifestyle. उससे ही जो हेयर फॉल है मेरे वो रुका और काफ़ी हद तक रुका और मुझे वापस रीग्रोथ हुआ। यू कैन सी दीज बेबी हेयर्स। तो ये बेबी हेयर्स मुझे उसके बाद ही आए हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कोई भी एक शैम्पू या फिर एक हेयर फॉल रेंज ले लेंगे और कुछ सिरम्स लगा लेंगे उससे सब ठीक हो जाएगा, सो सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, इट डज़ नॉट वर्क दैट वे, इट डिड नॉट वर्क दिस वे फॉर मी एटलीस्ट।
सो हेयर फॉल रिकवरी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड पेशेंस. डोंट गिव अप. एंड अगर आपका हेयर फॉल 12 मंथ से ज़्यादा हो रहा है और बहुत ही सीवियर हो रहा है, या फिर आपको बॉल्ड पैचेस दिख रहे हैं अपनी स्कैल्प पर, सो डेफिनेटली कंसल्ट अ डर्मैट या ट्रिचोलॉजिस्ट को आप दिखा लीजिए एक बार. इट कुड बी समथिंग एल्स और समथिंग मोर सीरियस देन वी कैन प्रॉबेबली अंडरस्टैंड. तो वो वहाँ पर आप बिल्कुल भी वेट मत करिए, DIYs मत करिए, यूट्यूब वीडियोस देख के कुछ भी होम रेमेडीज मत करिए. जस्ट गो टू अ प्रोफेशनल एंड टेक सम हेल्प. So this was my postpartum hair fall journey without any filter. And if you are a new mom going through this phase, don't worry, बाल वापस आ जाएंगे slowly but definitely it will come. So don't worry about that. जितना worry करेंगे उतना stress होगा उससे और उतना hair fall होगा. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद द न्यू मॉम्स हु आर गोइंग थ्रू द सेम फेज और हु आर प्रॉबेबली गोना गेट इनटू दिस फेज. और मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली बताएं कि आप अपना पोस्टपार्टम हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं. आई वुड ऑल्सो लव टू ट्राई सम न्यू थिंग्स. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर सम मोर रियल स्किन केयर एंड वेलनेस वीडियोज ऑन दिस चैनल. स्टे ट्यून्ड and see you in the next video. Bye.